So we'll start with the first chapter of PT2, that is microorganisms. The topic itself says microorganisms, friend or foe. Foe means enemy. So are they our friends or they are our enemies? We'll be able to find out at the end of this chapter. We see around us different types of plants, animals. There are different other living organisms around us, but which we normally see with our own eyes. But there are a different type of living organisms which around us, which we normally cannot see, and these are called as microorganisms, या फिर इनको कहते हैं microbes, क्योंकि ये tiny living things इतने tiny हैं कि हम इनको अपनी naked eyes से नहीं देख सकते, and they can be seen only under the microscope, and that is why they are called as microorganisms, क्योंकि हम इन्हें microscope की help से देखते हैं, या इनको simply हम microbes भी कहते हैं. ये जो साइंस होती है ना, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, इनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट उनको स्टडी करते हैं उनको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. अब तो आप एक टर्म बहुत कॉमनली सुनते हो, वायरोलॉजिस्ट. वायरोलॉजिस्ट मतलब जो कि वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. सो देयर आर सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूजफुल टू अस, देयर आर सर्टेन व्हिच कॉज डिजीजेस. तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे in this chapter. All right, microorganisms जो हैं, first thing we have to know where are they present. Microorganisms, where are they present? So first of all we have to know their habitat. अब बोलेंगे कि ये कहाँ होते हैं. अब आपको through this pandemic we have come to know that microorganisms, especially viruses के बारे में तो हमें बड़ा कुछ पता लग गया. So we have to know the habitat of microorganisms. Habitat means where you will find these microorganisms. So microorganisms are जो they are found everywhere. कहाँ मिलेंगे? They are found in air. We can't see because we cannot. They are too tiny to be seen with the eyes. They are found in water also. They are found in soil also. All right. They are even inside the bodies of humans and animals. Inside human bodies, human and animal bodies भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे. ये सारी इन जगह के ऊपर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं they are present. They are even present in dead and decaying matter. All right. They can survive in extreme conditions. बहुत ज्यादा extreme conditions of ice cold conditions में भी हमें microorganism मिल जाएंगे, क्योंकि वो वहां पर survive करते हैं. And extreme hot, जैसे कि cold, बहुत ही cold conditions से लेके extreme hot conditions, जैसे कि deserts हो गए, hot springs हो गए, जहाँ temperature is too high, वहां पर भी microorganism survive करते हैं, exist करते हैं. They can survive in almost all types of environment. सब तरह के एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर जाते हैं. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो वी हैव टू टेक अ सैंपल ऑफ सॉइल एंड देन पुट इट फ्रॉम द आउटसाइड. हमारे बाहर गार्डन से ले सकते हो आप, बाहर स्ट्रीट के पास से ले सकते हो. एड सम वाटर टू इट, एंड आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द beaker and observe it under the microscope. आपको उसमें माइक्रोऑर्गेनिजम्स, बहुत टाइनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपको लिविंग नजर आएंगे. अगर आपने पॉन्ड वाटर लिया है, पॉन्ड वाटर का एक ड्रॉप लेकर स्लाइड के ऊपर डाल के माइक्रोऑर्गेनिज्म में देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो आपको उसमें भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स नजर आ जाएंगे. इसका मतलब हुआ कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल. ये जो वाटर, सॉइल में, दे आर फुल ऑफ टाइनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स. But we will not be able to see all types of microorganism in one particular habitat only. अलग-अलग habitat में हमें अलग-अलग तरह के microorganisms नजर आते हैं. कुछ microorganisms की category में they are termed as microbes or microorganisms. They are small in size, इसलिए हम उनको microorganisms कह रहे हैं. But लेकिन कुछ ऐसे भी हैं that grows bigger in size and we can see them with our naked eyes without the help of microscope, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. Microorganisms जो है basically
basically जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं they are divided into four different categories. They are divided into four different categories. These are bacteria, fungi, algae, and protozoa. ठीक है, बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन चार क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. वायरसेस जो हैं ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं. They are, however, they are very very small when compared to even other microorganisms also. तो इनको हम separately पढ़ते हैं. We study them as separate class. All right, because all these are falling into a living organisms category. But viruses जो हैं, we'll be studying about them. They are on the borderline of living and non-living. So we'll study them separately. But they are also microscopic. All right. So as you can see, microorganisms जो हैं, they can be divided into protozoa, bacteria, algae, fungi, and a separate class which are called as viruses. We can study them also under this category also, but you must remember that basically they are bacteria, fungi, protozoa, and algae. अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ऑल दीज viruses जो हमें separately पढ़ते हैं. We'll be studying a little bit in detail about these two, these four first. पहले है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है इनको सिंगुलर बैक्टीरियम कहते हैं. They are simplest microorganisms of all. यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं. They are found in different shapes. कुछ रॉड शेप होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ कॉमा शेप्ड होते हैं. इनके अलग अलग नेम्स भी होते हैं. Almost all bacteria are invisible to naked eye, or they can double. ये बहुत जल्दी rapidly grow करते हैं and they can double as quickly as in 10 minutes, every 10 minutes. ठीक है. Second class of microorganisms जो हम यहाँ देख रहे हैं, they are fungi. Fungi जो है singular fungus कहते हैं. ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में आप क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एक नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं विच आर मोस्टली सैप्रोफाइट्स. सम आर पैरासाइट्स. कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, फंगस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया, मशरूम्स हो गए. देन कम्स प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल. ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं दे आर यूनिसेल्युलर, मतलब सिंगल सेल्ड है. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं, जैसे कि आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं. ये हेट्रोट्रोफिक है. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. देयर इज ओनली वन प्रोटोजोआ, यूग्लिना, जो कि क्लोरोफिल कैरी करता है एंड इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड. यू हैव पिक्चर ऑफ दीज microorganisms on page number 18 in your book. Kindly go through it. ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआस है. ठीक है. एंड देन यू हैव एल्गे. एल्गे जो है दे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स. कुछ इसमें से यूनिसेल्युलर है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो क्लामाइडोमोनस. ये यूनिसेल्युलर है, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ है. ये एक सिंगल सेल है. ये हमें को बहुत बड़ा लग रहा है ना देखने में. इट इज लुकिंग ह्यूज, बट इट इज एक्चुअली अ सिंगल सेल एंड विद दैट टू माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, तो ये जो है कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ये स्पाइरोगायरा आपको दिखाया हुआ है. ये वाटर में हमें मिल जाता है बहुत आसानी से. वाटर के, अगर आपने स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर कई बार देखा होगा, एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है. वो जो लेयर होती है उसमें ये, अगर आप उसको उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ये स्पाइरोगायरा नजर आएगा. हैड यू बीन इन द स्कूल यू वुड हैव सीन, अगर आप स्कूल में होते तो मैंने आपको माइक्रोस्कोप में इनकी परमानेंट स्लाइड्स दिखानी थी. हो सकता है हम लाइव वाटर में भी वो जो सैंपल रखते हैं वो भी चेक करते हैं, तो आप लोग देख पाएंगे. ये जो स्पाइरोगायरा दे आर फाउंड इन वाटर एंड दे पोजेस क्लोरोफिल. इनके पास भी ग्रीन कलर होते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. नाउ कमिंग टू वायरसेस. वायरसेस जो होते हैं
बहुत ही पॉपुलर हैं वायरस, तो सबसे पॉपुलर वायरस के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं। These viruses, they are also the smallest microorganisms that can be only seen under electron microscope. इनमें एक genetic material होता है and एक protein coat होता है. I guess many of us know about them now, and they can only multiply inside a living host. जब तक वो living body से बाहर हैं, they are non-living. And that is why the study and to treat viral diseases it becomes more difficult, क्योंकि ये जो viruses होते हैं वो जो जिस भी living body के अंदर जाएंगे उनका जो सिस्टम है, डीएनए है, उसको वो यूज करने लगते हैं, और अगर हम उनको ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके साथ में वो हमारे जो यूजफुल या हमारे बॉडी के अदर सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स हैं, उनको भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए वायरस या वायरल डिजीजेस की ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। एंड दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। Outside the host cell, living जो virus होता है, it does not show any characteristics of living things. Viruses are said to be on the borderline of living and non-living. ठीक है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, then इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड सबसे पॉपुलर एंड सबसे कॉमन कोरोना वायरस। ठीक है, जिसके बारे में हम सब जान चुके हैं, और किसी वायरस के बारे में अगर हमें नहीं भी पता था तो अब हमें जरूर पता है। सो वी नो दैट क्यों इनको हमें ज्यादा स्पेशली ट्रीट करना पड़ता है, इनको अलग क्लास में पढ़ना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। they become living only inside a living body. Once they enter into a living body, they become living. जब तक वो living body से बाहर हैं, they are non-living. All right? Okay. जितना 12 कोरोना वायरस के बारे में वी आर स्केयर्ड, वी नो दैट इट इज कॉजिंग हार्म टू अस, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत 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 हेल्पफुल हैं, एंड इन मेनी वेज। सो पहला है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके बिना आप और हम रह नहीं सकते हैं, उनमें हेल्प कौन करते हैं? माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज a bacteria which is named as lactobacillus. Lactobacillus, ये जो बैक्टीरिया है, it is useful for formation of या for transferring milk to curd. मिल्क से कर्ड बनाने का जो प्रोसेस है, यू विल रेज योर हैंड जिन बच्चों को कर्ड बनाना आता है। They know how to make curd. They have actually made curd. A few of them have actually made curd. I will name them. कौन-कौन बच्चे हैं? Raise your hand. I think Sharanjeet says she has made curd. Vedansh, Sehajpreet, Jayaditya, Diksha, Jia. They all know how to make curd. Sant Singh, Parinika, Gursimran, Pratyush, Parth. ऐसे नहीं हैंड खड़े करते ने, मैंने पूछना है कैसे बनाता है। Navroz, please kindly unmute yourself and tell me how will you make curd from milk? How will you make curd from milk? Unmute yourself, Peter. मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये प्रोसेस। Can you unmute yourself and tell me? I have got this milk also and curd also. ठीक है? I think there is some disturbance, so let us not. How will you make curd? This is curd. ये मैंने curd थोड़ा सा लिया हुआ, already prepared curd. ठीक है? और ये मेरे पास है warm milk. This is warm milk. All right? Can you see it? This is warm milk. तो मैंने जरा सा, इतना सा I'm taking curd. You can see it. I'm taking a very small amount of curd. Taking only this much of curd, and I'm mixing it in warm milk. And that's it. I will keep it undisturbed for few hours in a warm place, and this milk will get converted into curd. अब इस कर्ड में ऐसा क्या था
कि ये मिल्क को कर्ड में चेंज कर देगा। देखिए मिल्क की कंसिस्टेंसी और कर्ड की कंसिस्टेंसी में फर्क है। हम लोग सभी आज ये दोनों चीजें कंज्यूम करते हैं, तो ये मिल्क से कर्ड कैसे बनेगा? दैट इज प्रेजेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया विच इज टर्म्ड एज, अब ये मैंने सेट कर दिया है बेटा, आई हैव दिस सेट दिस, नाउ आई विल have it in the afternoon because by the time it will change into curd. So it is this bacteria which is called as lactobacillus. It is helping it जो मिल्क होता है ना उसमें लैक्टोज होता है, मिल्क शुगर होता है, तो कर्ड में क्या होता है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है that helps to convert lactose in the milk to lactic acid. मिल्क में है लैक्टोज, इट इज अ शुगर, और कर्ड में है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, इट कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, और मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस। समझ आ गई बात? वेरी गुड। तो आज सब लोगों के लिए ये एक एक्टिविटी है कि आज आफ्टर द क्लास यू विल आस्क योर मम्मा टू give you some milk and curd and you will help her in formation of curd. उनको बोलना कि आज हम कर्ड आपके लिए बनाएंगे और सभी लोग आफ्टरनून में खाएंगे। आफ्टर द क्लास यू कैन मेक इट, इन समर्स टाइम इट टेक्स लेस टाइम टू गेट कन्वर्टेड। सो दिस इज द फर्स्ट यूजफुल। अब आप सोचिए अगर ये यूजफुल बैक्टीरिया नहीं होता लैक्टोबैसिलस, तो हमें कर्ड खाने को नहीं मिलता। There are certain other bacteria which are made जैसे कि लैक्टोबैसिलस भी है, स्ट्रेप्टोकोकस भी है, जिनसे हम चीज और पनीर भी बनाते हैं। जो चीज और पनीर अगर आपने हमने घर में देखा है फॉर्मेशन उनका, तो हम कर्ड डाल के मिल्क में, या फिर हम लेमन डाल के, लेमन जूस डाल के, विनीगर डाल के हम उसको कन्वर्ट करते हैं मिल्क को चीज में, पनीर में। तो वो भी बिकॉज ऑफ दिस गुड बैक्टीरिया which is helping in formation of, तो second जो हो गया, it is first one is formation of curd, और फिर चीज, पनीर। ठीक है, and then we have ये तो बैक्टीरिया से हो रहा है। There are certain fungus जो कि yeast जिसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा, खमीर कहते हैं इसे पंजाबी में, है ना, हिंदी में पंजाबी में। That helps in the formation of bread. ब्रेड जो इतना ये देखिए यहाँ पर, it is very soft. It has certain holes in it, present in it, है ना। इसके स्ट्रक्चर में देखिए होल्स भी। केक्स भी खाते हैं आप, पेस्ट्रीज खाते हैं, तो उनका भी टेक्सचर कुछ ऐसा ही होता है, ब्रेड के जैसे ही होता है। तो उस ब्रेड बनाने के लिए जो डो होता है ना, देयर इज एन मैदा लिया जाता है या आटा लिया जाता है, और जब उसको हम आटे का डो बनाते हैं ना, जो हम चपाती बनाने के लिए करते हैं, वैसे ही उसमें हमें यीस्ट ऐड करना पड़ता है, एंड दैट मेक्स दिस डो वेरी, वो पूरा फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है, उसमें एयर फिल हो जाती है, और ये एयर गैप्स ही आपको ऐसे होल्स की तरह नजर आते हैं, क्योंकि इसमें एयर जो राइज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो राइज कर रही है, दैट विल मेक इट लाइट एंड फ्लफी। लेट अस सी एन एक्टिविटी हाउ टू मेक दिस। Okay, what we do is we take some flour या आटा या मैदा कुछ भी लेंगे, and we'll take some water, and we are taking yeast. This is yeast, and yeast आपको पता है, it is a fungus, unicellular fungus. ये हमने आटा या मैदा लिया हुआ है, and this is some sugar. ठीक है, शुगर जो नॉर्मल चीनी होती है जो हम खाते हैं। तो we'll take some warm water. ठीक है, warm water to this आटा और flour, we'll mix it. ठीक है, and this is one way of doing it. All right, we are mixing it to make a dough. और ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट सा डो बन गया है। इसमें हमने थोड़ा सा
शुगर ऐड किया था, we'll add some yeast powder. हमने yeast, it is a small very powdery substance. I'll be showing you tomorrow. मेरे घर में खत्म हो गया है, तो I'll be showing you tomorrow. This is sugar. We'll add 2 to 3 spoons of sugar and some warm water and yeast, and we'll mix it to make a proper dough. You can add this sugar and yeast in the beginning also and use warm water to make the dough. ठीक है, डो बना के इसको you will leave it, एक सॉफ्ट डो बना के आप इसको 1 आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, and you will cover it for some time and leave it, and you can see the volume now, and afterwards ये देखिए, after some time you can see it that it has, इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा राइज कर गया है. सो इट हैज, अगर आप इसको थोड़ी देर और छोड़ देते हैं बहुत ज्यादा राइज कर जाता है एंड लाइट एंड फ्लफी हो जाता है. ठीक है, so this is the way to, you can easily make it, you can even make help your mother in preparing. अगर आपको भटूरे खाने का मन है तो आप उनको कह सकते हैं कि आज डो जो है हम प्रिपेयर करेंगे, यू गेट अस सम यीस्ट, शुगर हमारे घर पे ही होता है, तो आपने 2 to 3 स्पून ऑफ शुगर लेना है, आप थोड़ा सा यीस्ट वाटर में मिक्स कर कर, ठीक है, एंड शुगर वाले सोल्यूशन में यीस्ट डालिए और उस वाटर से आप जो है आटे को जो है knead कर दीजिए and make it a soft dough and leave it covered for some 2 to 3 hours. After some time you will see that it will rise, बहुत ज्यादा rise कर जाएगा, as you can see it on figure 20 also, वो बहुत ज्यादा rise कर जाएगा. Actually क्या होता है, yeast जो है उसमें जो yeast present है, yeast is a fungus, a unicellular fungus. ठीक है, और yeast जो है it reproduces, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, produces, and इस प्रोसेस में वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जो ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन, और जो बबल्स होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्योंकि वो एक गैस है और लाइट है, तो इट विल राइज अप, वो ऊपर की तरफ मूव करेगी. जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वो जो डो है, डो के अंदर प्रेजेंट है ना, तो डो से वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, और जब वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो वो होल्स डो को भी कैरी करेगी और वहां पर होल्स हो जाते हैं. तो जो प्रिपेयर्ड फूड होता है उसमें आपको ये होल्स नजर आते हैं. तो यही सिमिलर प्रोसेस हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड ऑल्सो, फॉर मेकिंग केक ऑल्सो, फॉर मेकिंग पेस्ट्रीज ऑल्सो, फॉर मेकिंग भटूराज ऑल्सो. तो ये सेम ही प्रोसेस यूज होता है, एंड इसमें यीस्ट यूज होता है. सो दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट बेकिंग इंडस्ट्री में टू मेक ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स, भटूराज. इसमें यीस्ट यूज होता है विच इज अ फंगस, अ वेरी यूजफुल फंगस. अब इनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ हमारे घर के खाने में ही नहीं यूज होते हैं, इनको हम कमर्शियली भी यूज करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. मान लिया अल्कोहल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्कोहल इज अ बेस फॉर मेनी मेडिसिन ऑल्सो. तो उसके लिए अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए भी, अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज विनीगर. विनीगर जिसको हम घर में कॉमनली यूज करते हैं, जिसको हम सिरका कहते हैं, सिरका, वो विनीगर जो है दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यीस्ट. यीस्ट से ही ये सारा कुछ बन रहा है. यीस्ट इज वेरी यूजफुल इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज, स्पेशली फॉर अल्कोहल, वाइन. ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोसेस, अब ये होता क्या है इसमें, जो यीस्ट होता है ना, दैट इज ग्रोन ऑन मटेरियल. यीस्ट होता है दैट इज ग्रोन ऑन अ मटेरियल व्हिच कंटेन्स शुगर. ठीक है, sugars present in the grains like barley के grains, wheat भी हो सकता है, barley भी हो सकता है, rice भी हो सकता है. इनमें बहुत ज्यादा rich in carbohydrates होते हैं. carbohydrates मतलब sugars, है ना. तो इनके जो grains होते हैं, इनके ऊपर जो है it is grow किया जाता है on yeast को, and fruit juices ले लो. fruit are very rich in सबसे जो है इनके साथ yeast